Good morning, dear students. So today we will start with the new chapter of organic chemistry, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. So previously we have studied two of the chapter of organic chemistry. The first one is haloalkane and haloarenes, and the next one is alcohol phenol ether. So I suggest all of you to go through that two chapters, by which this chapter will be a bit easy to understand if you go through both the chapter. You must have revised that, as I have told you earlier also. So let's start with aldehyde, ketone and carboxylic acid. So in the last chapter of organic, we have studied the carbon oxygen single bond. We have studied the chemistry of carbon oxygen single bond, and in this chapter what we are to study is the carbon oxygen double bond, that is also known as the carbonyl group, and the compounds that have carbon double bond oxygen is known as carbonyl compounds. So here what we are to study? The study of carbon oxygen double bond chemistry. We have to study about the chemistry of carbon double bond oxygen, and they are known as the carbonyl group, and the compounds that contain this carbonyl group are known as the carbonyl compounds. For examples, aldehyde, ketones, carboxylic acid and the derivatives of carboxylic acid. So let's see one by one. What about the aldehyde group? वैसे तो क्लास 11th में हमने इन सब का जो IUPAC नेम्स हैं वो सीखे हैं, तो हमें पता है कि aldehyde ग्रुप क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, even though we'll discuss about them. So aldehyde group में, as I have told you, that is under the carbonyl group, must be having the carbon double bond oxygen. यानी अगर aldehyde carbonyl ग्रुप में आता है तो it means it must contain carbon double bond oxygen. With this we are having hydrogen as one of the valency. ठीक है, one of the valency क्या होगी? हाइड्रोजन होगी, and the other valency, the left valency would be R. जहां पर हम R क्या कह सकते हैं? R either may be hydrogen, it may be alkyl group, यानी जैसे कि CH3, C2H5. It may be aryl group, aryl group का मतलब बेंजीन रिंग, और it may be R alkyl group. R alkyl group means combination of two. You may say जैसे कि CH2 and बेंजीन रिंग. अगर ये अटैच्ड हो जाता है यहाँ पर बेंजीन रिंग CH2 के साथ बेंजीन रिंग, so it means that would be R alkyl group. So it means aldehyde group का मतलब क्या हुआ? कॉमन क्या है यहाँ पर? That is CHO. So the aldehyde group is CHO group. ये क्या हो गया हमारा? aldehyde. That is first compound of carbonyl group. The next that we are to discuss is ketone. कीटोन में क्या होता है? Again that is a carbonyl compound. इसका मतलब यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा. These two valency would be having either the same R. Same R means यहाँ R का मतलब मेरा क्या है? R का मतलब है ये या तो एल्काइल हो सकता है या आपका एराइल में बी देयर. ठीक है, ये दोनों R अगर सेम है तो हमारा कहलाएगा सिंपल कीटोन. अगर ये R दोनों सेम है तो ये कहलाएगा सिंपल कीटोन, और इसको हम सिमेट्रिक भी कह सकते हैं. ये हमारा हो गया सिंपल. अब अगर यहाँ पर R डैश लिख देती हूँ मैं, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन. सो कीटोन ग्रुप मींस C डबल बॉन्ड O ग्रुप. ठीक है, और ये दोनों R की जगह एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकते हैं. द थर्ड मेंबर इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में भी क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब भी है आपका कि कार्बोनिल ग्रुप तो होना ही होना है इसमें. C डबल बॉन्ड O, इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं. साथ में इससे एक वैलेंसी जो है वो
हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप भी जुड़ा होगा, एंड वन ऑफ द वैलेंसी जो यहाँ पर R है उसका मतलब H भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, या फिर R एल्काइल भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ H लिखती हूँ तो मेरा पहला मेंबर बनता है फॉर्मिक एसिड HCOOH। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं H मेंशन करती हूँ तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, बट इस केस में R नहीं आ सकता, इस केस में दोनों एल्काइल या एराइल ग्रुप ही आते हैं। सो दैट इज द थर्ड कैटेगरी व्हिच इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप क्या है, COOH ग्रुप। तो यहाँ हमारा हुआ CHO ग्रुप। In the case we are having C double bond O group कीटोन, और ये क्या है हमारा COOH group, that is the acid group. We all are familiar with that, हमें पता है, पहले से जानते हैं, फिर भी हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया। What about the next one? As I have told you, there are 4 derivatives of carboxylic acid जिनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। Even though carboxylic acid के derivatives हैं हमारे 4, ठीक है, 4 डेरिवेटिव्स आर देयर, और इनको आप कैसे बना सकते हो? सो हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके लिए आपको इस OH को रिप्लेस करना होता है अदर ग्रुप से, यानी आपको क्या करना है, -OH। इन ऑल द केस you are to -OH from carboxylic acid and you are to add other groups। जैसे कि if I replace OH by X, यानी मैंने क्या कर दिया, -OH, then I have add X in place of OH, हेलाइड को ऐड कर दिया, तो हमारा ग्रुप बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OX, RCOX, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल हमने पढ़ा है एसिटाइल क्लोराइड। हमने फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा था क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी, उसके लिए हमने इसका यूज किया था CH3COCl, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, सो दिस ग्रुप इज एसाइल हैलाइड। क्या कहलाता है, एसाइल हैलाइड। और ये वैसे सारे ही एसाइल डेरिवेटिव कहे जाते हैं क्योंकि ये हमारा एसाइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, सो दैट इज एसाइल हैलाइड। द अदर मेंबर इज, इफ सपोज इन प्लेस ऑफ OH आई हैव एडेड OR-। ठीक है, इसकी जगह मैंने OR- ऐड कर दिया, सो इट वुड बी RC डबल बॉन्ड OR-। अब ये R- अलग भी हो सकता है और ये वाला सेम ग्रुप भी हो सकता है। इट मींस आई मे टेक मिथाइल हेयर एंड हेयर आल्सो, दैट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल एसीटेट। इफ यू रिमेंबर कौन सा ग्रुप है, RC-OR-, एस्टर। ठीक है, सो दैट इज एस्टर ग्रुप। ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया एस्टर। द नेक्स्ट डेरिवेटिव इज, मैंने -OH किया और उसकी जगह जोड़ दिया OCOR। मैंने उसकी जगह क्या जोड़ दिया, OCOR। सो लेट्स सी क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O, देन अगेन OC डबल बॉन्ड OR। ये पूरा जोड़ना है ना मुझे, OCOR जोड़ना है। OCOR मैंने यहाँ पर OH की जगह पर जोड़ दिया। RCO एसिड से आया, इस OH को मैंने हटाकर यहाँ क्या जोड़ दिया, OCOR। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा एसिड एनहाइड्राइड। इसको भी डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। अगर हमारा डाइबेसिक एसिड है तो हम डाइबेसिक एसिड में से मैक्सिमम नंबर, डाई या ट्राइबेसिक एसिड है उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर दें तो एनहाइड्राइड बन जाता है। और अगर हमारा मोनोबेसिक एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड, तो मैंने आपको बताया है एनहाइड्राइड बनाने के लिए यू आर टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वी आर टू एलिमिनेट, सो आई में एलिमिनेट ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पर 2 ही H हैं जो एलिमिनेट कर सकते हैं वाटर को। सो व्हाट इज लेफ्ट, CH3CO। देखिए इसी फॉर्म में लिखती हूँ उसको, CH3C डबल बॉन्ड O, देन 1 O इज कॉमन, मींस एक ये वाला O जो है वो दोनों जगह से बॉन्ड बनाएगा। एक तो इसने बॉन्ड यहाँ से बना रखा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दूसरा यहाँ पर जो वैलेंसी फ्री होगी उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देन अगेन
C double bond O, ये देखिए, and CH3. So this is the structure of acid anhydride. That is the third derivative of acid. And now the last one is we are to add NH2 group. OH की जगह किसको ऐड कर देना है? NH2 को. So the common structure would be RCO. देखिए RCO, OH को हटाकर आपको लिख देना है NH2. So that would be amide group. क्या कहलाता है? amide group, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है हमारे सामने? CH3CONH2, जिसको हम जानते हैं एसिड अमाइड. एसिड अमाइड के नाम से जानते हैं, एसिटामाइड, ACETAMIDE. ठीक है, यानी इसका मतलब है ये एसिटिक एसिड से बना है. एसिटिक एसिड प्लस अमाइड ग्रुप विल फॉर्म एसिटामाइड. ये इसका कॉमन नेम होता है. So these all are the carbonyl compounds about which we are to study, जिसमें से हमें डिटेल में किसको पढ़ना है? बेसिकली एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. So that we are to study in this chapter. Basically these aldehyde, ketones, carboxylic acid, ester, these are that play the very important role in animal as well as in plant kingdom. तो हम यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स देखते हैं विच बेसिकली ये जो एल्डिहाइड्स वगैरह हैं, एस्टर हैं, इनका रोल क्या है? टू प्रोवाइड द फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स. ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. So as I have told you कि ये जो compounds हैं they provide fragrance and flavor to the naturally occurring plants and animal kingdom. So let's see, basically to the plants, here I am going to give the examples as vanillin. Vanillin जिसको हम opt किससे करते हैं? Vanilla beans. ठीक है. And what about the structure of it? So ये एक एल्डिहाइड है, सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड. ठीक है, एल्डिहाइड के पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप और मिथॉक्सी ग्रुप at the meta position to the aldehyde group. Next I will take the example of cinnamon. Cinnamon compound is cinnamaldehyde. It is being opt from cinnamon, जिसको हम हिंदी में दालचीनी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, वनीला तो यू नो वेल. So what about structure? CH double bond, CH single bond, CHO. That is the structure of cinnamaldehyde. फिर एक हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सैलिसल्डिहाइड. That is also the aldehyde and OH at its ortho position. Okay, so that we are getting from vanilla beans, from cinnamon, and that is from sweet meadow. So basically these compounds, these carbonyl compounds are helpful in the manufacture of paint, provide flavor in perfume industry, as adhesive, as resins, and हमारी laboratory में as a solvent. ठीक है, बेसिकली अगर कॉमन देखें तो एसिटिक एसिड को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट में आप मीडियम को एसिडिक करने के लिए एसिटिक एसिड का यूज करते हैं. ठीक है, तो एज अ सॉल्वेंट लेते हैं एसिड को एंड टू द एसीटोन आल्सो. एसीटोन को भी एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है. सो दैट इज अबाउट a bit about aldehyde, ketone and carboxylic acid के हम लोग क्या क्या इसके बारे में बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में. The next thing that we are to discuss is the common names of aldehydes and ketones.
ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, एल्डिहाइड के और कीटोन के कॉमन नेम्स को लेके थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे। आईयूपीएसी सिस्टम हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, कॉमन नेम लेने के लिए हमें, वैसे तो एग्जाम में कॉमन नेम आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कॉमन नेम का भी, क्योंकि अगर कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो एल्डिहाइड का कॉमन नेम बेसिकली इज डेराइव्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एसिड। ठीक है, जैसे मान लीजिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एसिड एज आई हैव टोल्ड यू, दैट इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड इसका नाम होता है। ठीक है, तो हमें क्या चेंज करना होता है, इसमें इक को आप हटा देंगे और उसकी जगह आप एल्डिहाइड का यूज करेंगे, बट ऑब्वियसली एसिड भी हटाएंगे ही, क्योंकि एसिड नहीं है। तो अगर मैंने एल्डिहाइड लिखा, फर्स्ट एल्डिहाइड दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इक आपने हटा दिया, फॉर्मेल्डिहाइड वुड बी द कॉमन नेम ऑफ इट। क्लियर हो रही है मेरी बात? इन अ सिमिलर मैनर नेक्स्ट मेंबर अगर मैंने लिख दिया एसिटिक एसिड, आप जानते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो यहां से आप एक एसिड हटा देंगे और एल्डिहाइड लगा देंगे, सो दैट वुड बी CH3CHO। भाई एल्डिहाइड में हमारा CHO ग्रुप होता है, एसिड में COOH ग्रुप होता है। ठीक है, सो इट वुड बी नेम्ड एज एसिटल्डिहाइड। ओके, so like this you are to give the common name of particular acid. Next one is propionic acid. ठीक है, तो propionic acid की जगह क्या हो जाएगा आपका, propion aldehyde। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप नाम यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे in the similar manner। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी एलिफेटिक चेन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, फॉर दैट व्हाट शुड बी द नेमिंग स्ट्रेटजी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 3 कार्बन का चेन ले लिया, ठीक है, जिसमें एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, कॉमन नेम की हम बात कर रहे हैं और मैंने कहा कि कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे कि Br यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पर्टिकुलर जो हमारे एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा कार्बन है उसको ग्रीक लेटर अल्फा से, नेक्स्ट को बीटा से, अगर मैं और नेक्स्ट मेंबर यहाँ पर लिख दूं तो गामा से, अगला मेंबर और लिख दूं तो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें नाम लेने के लिए क्या करना होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का यूज करना होता है। तो इसका नाम अगर मुझे यहाँ मेंशन करना है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन के लिए हम 5 कार्बन वाले एसिड को हम कहते हैं वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो वैलेरिक एसिड की जगह क्या हो जाएगा, वैलेरिक एसिड 5 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा हमारा, 1 2 3 4, और ये आ गया COOH हमारा। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया क्या करना होता है, आपको इक हटाना होता है और इसकी जगह एल्डिहाइड मेंशन करना होता है, तो वैलेरल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी अल्फा पोजीशन पर कौन है, Br, सो इट वुड बी अल्फा ब्रोमो वैलेरल्डिहाइड। ठीक है, सो लाइक दिस यू आर टू नेम इट। क्लियर हो रही है बात? अगर बीटा पोजीशन पे होता तो आप बीटा मेंशन करते, दोनों पर होता तो सेम ग्रुप होता तो अल्फा बीटा और डाई का यूज करते। क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से आपको ग्रीक लेटर्स का यूज करना होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा पोजीशन यू नो वेल, दैट इज नेक्स्ट टू द ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट टू द ग्रुप जो कार्बन है उस पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो अल्फा होगा, देन नेक्स्ट इज बीटा, देन गामा, देन डेल्टा। So like this you are to give the common name. Now if we talk about the alicyclic and aromatic compounds, तो हमें ध्यान रखना होता है, अगर मुझे एलिसाइक्लिक का नाम लेना है, सो ये एलिसाइक्लिक हो गई हमारी साइक्लोहेक्सेन। अगर मान लीजिए इस पर हमारा CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जैसे कि हम इसमें एल्डिहाइड को शामिल करके नाम लेते हैं, 5 कार्बन हमने काउंट किए, ठीक है, लेकिन इस केस में हम एल्डिहाइड ग्रुप को इस रिंग के साथ काउंट नहीं कर सकते।
तो उस केस में हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, कार्बेल्डिहाइड। और ये हमारा क्या था, साइक्लोहेक्सेन। सो द नेम वुड बी साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। लाइक दिस यू आर टू नेम दैट। इन द सिमिलर मैनर अगर हमारी एरोमेटिक रिंग पर CHO ग्रुप हो तो इसको भी हम रिंग में शामिल नहीं कर सकते, इसको भी हम क्या मेंशन कर सकते हैं, कार्बेल्डिहाइड। अब ये रिंग क्या कहलाती है, बेंजीन। सो व्हाट विल वी से, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? इसके अलावा हम क्या जानते हैं कि इसको हम बेंजेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। तो बेंजेल्डिहाइड इज द IUPAC as well as the common name for this aromatic aldehyde। तो इसको हम बेंजेल्डिहाइड भी कहते हैं और बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी इसका कॉमन नेम है। सो दैट इज बेंजेल्डिहाइड। क्लियर हो रही है बात? सो लाइक दिस वी आर टू नेम इट। अब अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट एलिसाइक्लिक में है और एरोमेटिक में भी प्रेजेंट है तो एक एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट एलिसाइक्लिक में है, जैसे मान लीजिए ये हमारा आ गया था साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, इसमें जब हमें सब्स्टिट्यूएंट देने होते हैं तो उसको हम जैसे कि एलिफेटिक चेन में देते थे, अल्फा, बीटा, गामा और आपका डेल्टा। ठीक है, सो अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है तो व्हाट वुड बी द नेम इन द केस, बीटा ब्रोमो। ठीक है, बीटा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर अगर मान लीजिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। सो हियर आल्सो इट वुड आल्सो बी बीटा, इट विल बी गामा, डेल्टा पोजीशन नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है सपोज और ये Br यहाँ पर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ये हमारा अल्फा हो जाता है, ये हमारा बीटा। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं अब बीटा नाइट्रो एंड साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है? इन द सिमिलर मैनर अगर एरोमेटिक रिंग में हमें सब्स्टिट्यूशन दिखाना है तो उस केस में हम यूज किसका करते हैं, यू नो वेल, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। वी से फॉर द पोजीशन कि किस पोजीशन पर ग्रुप है। सपोज NO2 यहाँ पर है तो आप क्या नाम देंगे इसका, पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, जब हम IUPAC नेम लेते हैं तो नंबर देते हैं 1 2 3 4 और जब हमारा कॉमन नेम लेना है तो हम ऑर्थो पोजीशन, इन दोनों पोजीशन को ऑर्थो, इन दोनों को मेटा और इसको पैरा के नाम से जानते हैं। सो लाइक दिस यू आर टू नेम दैम कॉमनली। कॉमन नेम इस तरीके से आप लेंगे। एक चीज और रह जाती है कि अगर हमारा एलिफेटिक चेन में एल्डिहाइड ग्रुप एक से ज्यादा बार आ रहा है तो क्या हम उसको चेन में शामिल कर सकते हैं? लेट्स सी 1 2 3 4। ठीक है, इसमें क्या हम तीनों CHO ग्रुप को नाम देने में यूज कर सकते हैं, सबको दे सकते हैं नाम, नहीं दे सकते। सो इन द केस हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और चेन बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर ये आता है सपोज हमारा तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमारी ये 3 कार्बन की चेन काउंट होगी और ये हमारा ट्राई एल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 कार्बन की चेन का मतलब प्रोपियो ट्राई एल्डिहाइड। प्रोपियोन ट्राई एल्डिहाइड। सो लाइक दिस वी आर टू नेम दैम। तो ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखेंगे, इस केस में भी आप इसको कार्बेल्डिहाइड कहेंगे, ट्राई कार्बेल्डिहाइड यू विल से दैट। ओके, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो कार्बेल्डिहाइड हम 2 जगह कह रहे हैं, 2 जगह क्या, वही केस आपको ध्यान रखना है कि जहां पर हम CHO को
बेसिकली चेन में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है, चेन में शामिल नहीं कर सकते, वहां पर हम इसे कार्बेल्डिहाइड के नाम से बुलाते हैं, सो दैट वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट एल्डिहाइड। अब हम बात कर लेते हैं कीटोन के कॉमन नेम की, जो कि बहुत सिंपल है। कीटोन के कॉमन नेम में आपको कीटोन वर्ड का यूज करना होता है, एंड एज आई हैव टोल्ड यू के आर का मतलब या तो एल्काइल होता है या फिर एराइल ग्रुप होता है। सो कीटोन के नाम में कुछ भी नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको एल्काइल या फिर एराइल का नाम मेंशन करना होता है, एंड यू हैव टू राइट डाउन कीटोन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने फर्स्ट मेंबर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, यानी ये एक मिक्स्ड कीटोन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें लिखना होता है एल्काइल कीटोन, ठीक है। तो 2 हैं एल्काइल, इथाइल और मिथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, सो राइट डाउन इथाइल मिथाइल कीटोन, क्लियर है। अगर मैं मान लीजिए एक लिख देती हूं मिथाइल और एक बना देती हूं रिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिथाइल, रिंग को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या कहते हैं, फिनाइल, एंड देन कीटोन। अगर दोनों सिमिलर होते हैं, जैसे कि CH3 और CH3 दोनों मैंने एक से ले लिए, तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल कीटोन। इसको हम कॉमनली एसीटोन के नाम से भी जानते हैं, ज्यादातर हम इसको एसीटोन के नाम से ही बुलाते हैं, बट अगर सेम ग्रुप हो, जैसे कि दोनों इथाइल हो, तो मैं डाई इथाइल कीटोन यहाँ मेंशन कर सकती हूँ। दोनों मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल कीटोन कह सकते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल टू नेम द कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स, ठीक है। अगर दोनों हमारी रिंग होती तो डाइफेनाइल कीटोन आप मेंशन कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली यू कैन मेंशन द नेम। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कीटोन के अराउंड दोनों पोजीशन होती हैं, उनको हम अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश का यूज करते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे कि 2 एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। इफ सपोज मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर भी CH3 था, यहाँ पर भी CH3, तो I have substituted one of the hydrogen with halogen group, ठीक है। मैंने एक एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया Cl से। सो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ग्रुप से नेक्स्ट जो पोजीशन होती है वो अल्फा होती है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। सो नेम वन अल्फा, अदर वन इज एज अल्फा डैश, ठीक है। एक को हम अल्फा बुलाएंगे, एक को अल्फा डैश, और जैसे जैसे चेन बड़ी होती चली जाएगी तो बीटा, बीटा डैश, फिर गामा, गामा डैश, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। तो कॉमन नेम लेने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा क्या था, डाइमिथाइल कीटोन था। अब अल्फा, अल्फा डैश, डाई क्या हो गए, क्लोरो, और कॉमनली एज आई हैव टोल्ड यू इसको एसीटोन के नाम से जानते हैं, तो आप यहाँ मेंशन करोगे एसीटोन। क्लियर हो रही है बात। इन द सिमिलर मैनर अगर मान लीजिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने दिखा दिया यहाँ बीटा पोजीशन पे, Br ग्रुप, ठीक है, और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया CH3, ओके, और यहाँ पर रहने दिया मिथाइल। तो बेसिकली अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो ये मेरा इथाइल मिथाइल कीटोन था, ठीक है। अब इथाइल वाली पोजीशन पर मैंने दे दिया यहाँ पर बीटा पोजीशन पर, ये तो अल्फा पोजीशन हो गई, ये हो गई हमारी बीटा पोजीशन। बीटा पर मैंने सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मेंशन कर दिया, सो आई विल राइट ओवर हियर एज बीटा ब्रोमो इथाइल। क्लियर हो रही है बात। मैं इसको कहती इथाइल मिथाइल कीटोन। अब इसकी बीटा पोजीशन पर क्योंकि क्या है, Br, सो आई विल राइट बीटा ब्रोमो इथाइल मिथाइल कीटोन। So like this we have to give the common name for aldehyde and ketone, जो कि हमें पता होने चाहिए। In the next lecture we will discuss about the IUPAC system of aldehyde and ketone। इन दोनों की बात करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें लास्ट में अलग से पढ़ना है। कोशिश करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को जो है लगभग एक साथ लेके चलेंगे, जिससे क्योंकि कई सारी रिएक्शंस जो हैं वो सिमिलर हैं, तो साथ साथ होती चली जाएंगी। So we'll try to take both of them with each other, ठीक है। So make the notes of this
and do practice for organic chemistry. Thank you.